Hello, students. So, we are reading chapter The Ailing Planet, The Green Movement's Role from your book Hornbill by Nani Palkiwala. So, this chapter is actually an article written by Nani Palkiwala for Indian Express newspaper in 1994, and in this chapter he discusses about the declining health of the planet Earth, and he talks about the reckless consumption of natural resources, biological systems, and all the forest lands by man in the name of development without caring for the needs of the future generation. Today we will study about the four biological systems of the earth and depleting forest lands of the earth. So, in the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads the world's most dangerous animals. Here he talks about a zoo at Lusaka in Zambia. Zambia is a country in East Africa. Okay, and Lusaka is known for many national parks and its wildlife and many zoos. Okay, in one of such zoo, there is a cage where the notice reads, where there is a notice on which is written the world's most dangerous animal. ओके, तो एक केज है, केज के ऊपर एक नोटिस लिखा हुआ है जिसके ऊपर लिखा, क्या लिखा है नोटिस पे, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, मतलब उस केज के अंदर कौन सा डेंजरस एनिमल है, हु इज द मोस्ट डेंजरस. सो इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ. तो अंदर कोई एनिमल नहीं है, एक मिरर है, यहाँ पे मैन खुद को ही देखता है, मतलब मैन हिमसेल्फ इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द world. And thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. So writer says thanks to the efforts of a number of agencies, like the agencies who came forward with the green movements and all other movements for improving the conditions of earth. तो उनको राइटर थैंक्स बोलता है कि जिन्होंने एक न्यू अवेयरनेस वो मैन काइंड में लेके आए हैं, जो कि मोस्ट डेंजरस एनिमल माना जाने लगा है, उनमें एक नई अवेयरनेस उन्होंने लेके आए हैं. डॉन्ड मतलब किसी के माइंड में कोई बात आना, केम एज एन अंडरस्टैंडिंग, कि आदमी ये बात को समझने लगा है, इस अवेयरनेस, ये अवेयरनेस उसके माइंड में आई है कि उसको अर्थ को प्रिजर्व करना है. He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. So man has started realizing, मतलब उसने ये समझना शुरू कर दिया है कि अब हमें डोमिनेशन से पार्टनरशिप के सिस्टम की तरफ हमने शिफ्ट होना है. पहले मैन समझता था कि हम ही हैं सिर्फ, और बाकी जो भी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हम उन सब पे डोमिनेट कर सकते हैं. ओके, पर अब उसको रियलाइज हो गया है कि अब उनको पार्टनरशिप के सिस्टम पे चलना ही, इसी में उनकी विजडम है, इसी में उनकी भलाई है. मतलब हम सब ने ये अर्थ शेयर करनी है, मैन एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस अर्थ. मैन को अकेले को डोमिनेट नहीं करना, अकेले को ही सारे रिसोर्सेस यूज नहीं करने. Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. तो साइंटिस्ट ने जो लिस्ट तैयार करी है, दैट इज अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज, ओके, जिनके साथ मैनकाइंड अर्थ शेयर करता है. एस्टिमेट्स वेरी वाइडली, वेरी मीन्स चेंजिंग. तो ये जो एस्टिमेट कैलकुलेशंस हैं दे चेंज वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीशीज. बहुत सारी लिविंग स्पीशीज हैं जिनको अभी तक लिस्टेड नहीं किया गया, जो कि अभी लिस्ट में भी नहीं आई है. बायोलॉजिस्ट काउंट और मेक कैलकुलेशंस दैट अबाउट 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. ठीक है, तो बायोलॉजिस्ट जो कैलकुलेट करते हैं कि 3 to 100 million अदर लिविंग स्पीशीज हैं जो अभी तक, लैंग्विश मीन्स वेट अनअटेंडेड,
ठीक है, उनको अभी नेम नहीं दिया गया है, अभी तक उनको लिस्ट में नहीं डाला गया है। इन ignominious darkness. Ignominious means shameful, disgraceful, something disgraceful for human beings. ओके, तो बहुत सारे ऐसे अभी तक भी और लिविंग स्पीशीज हैं जिनको कि बायोलॉजिस्ट ने अभी तक नोटिस नहीं किया है और लिस्ट में भी नहीं लिया है। One of the early international commissions which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Brandt Commission. ओके, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कमीशंस बने हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, तो उनमें से एक इंटर आलिया मीन्स अमंग अदर्स। ठीक है, तो ये बहुत सी प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं, बहुत से क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। तो अमंग अदर क्वेश्चंस, इंटर आलिया मीन्स अमंग अदर, तो एक जो क्वेश्चन है वो है इकोलॉजी और एनवायरनमेंट। Okay, so one of the early international commissions which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Brandt Commission. तो एक कमीशन का नाम मेंशन किया है ब्रांड कमीशन, ओके, जो इंटरनेशनल लेवल पे बने हुए हैं, and which had distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha. तो उनमें से एक उनका मेंबर इंडियन भी है जिनका नाम मिस्टर L.K. झा है। एंड द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज्ड द क्वेश्चन, आर वी टू लीव अवर सक्सेसर्स अ स्कॉर्च्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, impoverished landscapes and ailing environment। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज किया गया है इस ब्रांड कमीशन के द्वारा, इस ब्रांड रिपोर्ट के द्वारा। वो क्वेश्चन ये है, वो ह्यूमन बीइंग के लिए एक क्वेश्चन है कि क्या हमें अपने सक्सेसर्स के लिए एक स्कॉर्च्ड, एक ड्राई प्लेनेट छोड़ के जाना है जिसके अंदर एडवांसिंग डेजर्ट्स हैं, इम्पोवेरिस्ड लैंडस्केप्स हैं, इम्पोवेरिस्ड मीन्स वीक, डैमेज्ड, ओके, एंड एलिंग इन्वायरमेंट है। क्या हमें उनके लिए ऐसा प्लेनेट छोड़ के जाना है जिसके अंदर स्कॉर्च्ड या ड्राई डेजर्ट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे डैमेज्ड और लैंडस्केप्स हैं और सारा इन्वायरमेंट जो है वो इल है, एलिंग है। क्या हम अपने सक्सेसर्स के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए ये सब छोड़ के जाएंगे? Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospect, points out that the Earth's principal biological systems are four. तो यहाँ पे अर्थ के 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स के बारे में बताया है मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने उनकी बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में। तो जो 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं अर्थ के, 4 कौन कौन से हैं? फिशरीज, फॉरेस्ट, grasslands and croplands, okay, and they form the foundation of the global economic system। और ये चारों सिस्टम, फिशरी, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स, ये पूरे अर्थ के इकोनॉमिक सिस्टम के फाउंडेशंस हैं। In addition to supplying our food, these 4 systems provide virtually all the raw materials for industry। ओके, सो ये फूड तो सप्लाई करते हैं ये चारों बायोलॉजिकल सिस्टम, इसके अलावा ये इंडस्ट्री के लिए वर्चुअली ऑलमोस्ट पूरा रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स। So in large areas of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level। ओके, सो इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड जो ह्यूमन क्लेम कर रहा है इन सिस्टम पे, वो अनसस्टेनेबल लेवल पे पहुंच गया है। अनसस्टेनेबल मीन्स दैट कैन नॉट बी मेंटेन्ड। ओके, सो ह्यूमन क्लेम इतना ज़्यादा हो गया इस सिस्टम पे, अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड। तो उनकी कंजम्पशन ज़्यादा है और प्रोडक्टिविटी कम है, उसकी प्रोडक्टिविटी है दैट इज बीइंग अफेक्टेड। सो व्हेन दिस हैपन्स, फिशरीज कोलैप्स, तो फिशरीज वो सारा बिजनेस जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। फॉरेस्ट डिसअपियर, ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन मींस अनफर्टाइल वेस्टलैंड्स, तो उनका यूज ज़्यादा हो रहा है।
Okay, and croplands deteriorate, and croplands, the land where the cultivation can occur, they also getting deteriorated. In a protein conscious and protein hungry world, overfishing is common every day. So everyone is protein conscious today's world. तो फिशिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, फिश की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए ओवर फिशिंग हो रही है. ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे. इन पुअर कंट्रीज local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking. जो पुअर कंट्रीज हैं वहाँ पे लोकल फॉरेस्ट को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है in order to get firewood for cooking. In some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot now cost more than what goes inside it. तो बहुत सारी जगह पे तो मतलब जो फायरवुड है दैट हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, इतना कॉस्टली हो गया है कि राइटर सेज व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट. तो पॉट के अंदर जो पक रहा है खाना वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना कि पॉट के नीचे का फायरवुड एक्सपेंसिव हो गया है. सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मियर्स द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन. जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं they are the powerhouse of our evolution, our development. So several species of life face extinction as a result of its destruction. तो जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? सेवरल स्पीशीज ऑफ लाइफ दे आर फेसिंग एक्सटिंक्शन ऑन द अर्थ.